Everyone clear up to this? जय हिंद लिख दो फटाफट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड द विस्कोसिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स का विस्कोसिटी कैसे फाइंड किया जाए। तो राइट डाउन द हेडिंग, मेथड्स टू फाइंड विस्कोसिटी, methods to find viscosity or to measure the viscosity। ओके, मेजर लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। फाइंड ऐसा लग रहा है कहीं से खोज के ला रहे हैं, कहीं पड़ा होगा रोड पर विस्कोसिटी, उसको फाइंड कर लिया। टू मेजर द विस्कोसिटी, तो इसमें फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इज हेज़न-पॉइज़लीज़ इक्वेशन। तो हेज़न-पॉइज़लीज़ इक्वेशन, हेज़न-पॉइज़लीज़ इक्वेशन, ठीक है। तो इन्होंने बताया when there will be laminar flow through pipe, when there will be laminar flow through the pipes, तो इसको इक्वेशन को हम लोग पाइप फ्लो में पढ़ेंगे। when we will study that chapter in pipe flow, there this equation will appear, okay, this equation will appear there, but here I am giving you directly as a formula, okay। तो बोला let's say this is a pipe and there are flow through, there is flow through pipe and flow must be laminar flow, है ना। we will discuss what is laminar flow, what is turbulent flow, ये सारा कुछ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, we will discuss that later, but here I am showing you when there will be laminar flow through pipe, there we will consider any two sections. This is the section 1 or station 1 and this is section 2 or station 2, section 2 or station 2, length between them is L or distance between them is L, length of pipe is L। इसमें लिखेंगे when fluid, when there is laminar flow, when there is laminar flow through pipe, through pipe, the discharge, the discharge will be given by, the discharge will be given by Q equals to P1 minus P2, pressure at the section 1 and pressure at the section 2 into pi t का power 4 divided by 128 into mu into L। So this is the formula for discharge, okay। So the viscosity, viscosity of fluid will be found as mu equals to P1 minus P2 into pi by 4 d square divided by 128 into Q into L। So this is the formula by which you can find the viscosity of the fluid, viscosity of the fluid, okay, where D is the dia of pipe,
where D is the dia of pipe. P1 is the pressure here, P2 is the pressure here. Okay, so P1 will be pressure, P2 will be pressure here, like this. And Q is the discharge, L is the length between the junction. Okay, so where D is the pipe dia. D is the pipe dia. मिल जाएगा. So direct formula is there. You can find the viscosity of any fluid, but there must be laminar flow, laminar flow, laminar flow. So what is laminar flow and how laminar flow is achieved? What are the characteristics? ये सब हम लोग पाइप फ्लो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. When there will be chapter of pipe flow. ओके, तो टेंशन नहीं लेना है. अभी के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको बाद में पढ़ें. सेकेंड, स्टोक्स इक्वेशन. दूसरा तरीका क्या है? हाउ टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड. तो सेकेंड मेथड इज स्टोक्स इक्वेशन. स्टोक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी समझते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल, let's say this is some liquid is there, and टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के बाद. ऑल्सो स्टडी दिस थिंग. दिस इज लिक्विड and a body of spherical shape, will be dropped from some height. एक स्फेरिकल शेप का बॉडी हम लोग एक हाइट से ड्रॉप करेंगे. दिस इज द बॉडी ऑफ स्फेरिकल शेप. ओके, तो इसका डाया, लेट अस अज्यूम इसका डाया जो है दैट इज डी. डाया ऑफ दिस बॉडी, स्फेरिकल शेप बॉडी इज डी. ओके, सो दिस बॉडी वी विल ड्रॉप. तो मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है. दिस बॉडी वी विल ड्रॉप from some height like this. So when it will go down, it will attain some velocity. मान लो इसको यहां से आपने रेस्ट से छोड़ा. इनिशियली इट इज एट रेस्ट हेयर एंड यू विल ड्रॉप इट फ्रॉम हेयर. ड्रॉप इट, इसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, यू आर ड्रॉपिंग इट. इसको ड्रॉप किया. सो फ्रॉम हेयर टू हेयर इट विल गेन सम वेलोसिटी. From here to here it will gain some velocity. After gaining this much velocity, again its velocity first increasing in the liquid. This is experimental data. Okay, first its velocity will be increasing like this. After some depth, let's say h depth, the velocity of this, not increasing, decreasing. From here to here velocity will increase. Okay, it was initially at rest, velocity will increase. Then here at maximum velocity it will hit here, then it will be decreasing. Then after some depth h, the velocity will become constant. Further velocity cannot decrease. Then velocity will remain constant. When velocity will become constant, this velocity is called terminal velocity. ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी. अभी ये कांस्टेंट हो कैसे जाता है वो अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. वो क्या है? दैट इज द फंडा ऑफ मैकेनिक्स. एक्चुअली व्हाट विल हैपन थ्रूआउट दिस depth h, there will be acting drag force on the body. एक तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा और दूसरा बुओयेंसी फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा. ड्रैग फोर्स एंड बुओयेंसी फोर्स. एंड विच फोर्स इज एक्टिंग डाउन? एक्टिंग डाउन इज mg of the body. Let's say mass of body is m. Okay,
and the density of body is rho body. Density of body is rho body. Okay, and density of liquid is rho liquid or rho fluid. Okay, and this is the free surface open to air. तो क्या होगा, यहां से आपने बॉडी को रेस्ट से छोड़ा, स्टार्टिंग में यहां से यहां इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद यहां ये टच होगा तो इस पर रेजिस्टेंस लगना स्टार्ट होगा, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। यहां किसी डेप्थ h पर पहुंचकर फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है, देन इट विल गो डाउन बाय कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी क्या होगा, जब इसने कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लिया जिस हाइट के बाद, वहां से फिर इसकी वेलोसिटी बोली जाती है टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ ऑनवर्ड्स इट्स वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, नेट फोर्स अपवर्ड विल बी इक्वल टू नेट फोर्स डाउनवर्ड। व्हेन फोर्सेस विल बिकम इक्वल, when forces will become equal, net force on the body will be zero, then velocity of body will be constant. Simple mechanics, yes or no? तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसका डेरिवेशन भी होगा। तो अभी के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहां पर लिखो जरा, इट इज बेस्ड ऑन concept of terminal velocity. It is based on concept of terminal velocity. Terminal velocity. Terminal velocity. तो terminal velocity का फॉर्मूला क्या है, that is given by g into dia of the body square divided by 18 into mu into rho of body minus rho of liquid, ठीक है। so from here mu you can find gd square rho b minus rho l divided by 18 into b, 18 into b. This is how you can find the value of viscosity of this liquid, वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड। बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बोलो बोलो बोलो। बॉडी इज ऑफ स्फेरिकल शेप एंड मास ऑफ बॉडी एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉडी। यहां तक क्लियर हुआ तो जैन लिख दो फटाफट। इससे भी हम लिक्विड का विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हैं। दीज आर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ओके, डन हो गया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उन क्वेश्चन में हमें और भी मेथड मिलेंगे। वी विल फाइंड सम मोर मेथड टू फाइंड द विस्कोसिटी। ओके, जस्ट लाइक इट इज द मैकेनिक्स, जस्ट लाइक ऑलरेडी इन द डेरिवेशन वी हैव डन ना न्यूटन एक्सपेरिमेंट। कंसीडर ए फ्लूइड फिल्म, जिस भी लिक्विड का विस्कोसिटी फाइंड करना है उसका एक फ्लूइड फिल्म बना लो, उस पर एक प्लेट रखो, उस प्लेट रखा उस पर फोर्स लगाओ। अब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितना वेलोसिटी अचीव करने के लिए, एरिया आपको पता होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था म्यू ए वी अपॉन वाई। तो डिफरेंट एक ही लिक्विड के लिए डिफरेंट साइज का प्लेट रखो, डिफरेंट फोर्स होगा, डिफरेंट वेलोसिटी होगा। तो म्यू का डिफरेंट रीडिंग आपको मिलेगा, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 2। ऑन एन एवरेज क्या करेंगे, फिर एवरेज वैल्यू उसका निकाल दिया जाएगा। तो μ1 प्लस μ2 करके डिवाइड बाई 3 कर दो, तो उस लिक्विड का म्यू आपको मिल जाएगा। दीज आर दी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। या क्या काम करेंगे, इस तरीके से इधर एक फ्लूइड फिल्म बना लो, यहाँ पर एक प्लेट रखो और ब्लॉक रखो, ये फ्लूइड फिल्म है, और ग्रेविटी इज लाइक दिस। इसको यहाँ रेस्ट से छोड़ो, कितना टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। तो बार बार इसका टाइम रीड करो, ये कितना टाइम लगता है इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस ब्लॉक को। तो उससे भी क्या है, जब इसका FBD बनाएंगे, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट विल बी शियर फोर्स, नीचे की तरफ जो लगेगा दैट विल बी mg sin थीटा। तो बार बार इसका जो एक्सलेशन होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे।
तो रीडिंग जो आएगा बार बार उससे अपने को एफ एस मिलेगा, एफ एस से अपने को म्यू मिलेगा, बिकॉज एफ एस इज कनेक्टेड विद दी म्यू, म्यू ए डी यू ओवर डी वाई, और यू कैन से वी अपॉन वाई। बात समझ आई? सो देर आर मेनी मेथड टू फाइंड दी विस्कोसिटी। ओके, इनका डेरिवेशन चैप्टर, जब चैप्टर आएगा तब आएगा, जो डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं छूटेगा, इनका डेरिवेशन नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। जो प्रेशर हो सारी इक्वेशन लगेंगी वो, अभी आपको इक्वेशन पता ही नहीं है, ये पाइप फ्लो है, अभी पाइप फ्लो की हवा ही नहीं है, अभी लेमिनार फ्लो क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें और एक फॉर्मूला मिलेगा, पूरा डेरिवेशन करेंगे उसमें, डोंट वरी, किस चीज़ को कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। चलो, सो नाउ